Students, in today's session, we'll be learning some of the aspect of SI unit, wherein we'll learn about 7 fundamental units as well as 2 supplementary units. So SI system में हम 7 fundamental units और supplementary system के बारे में पढ़ेंगे, and there afterwards we'll be learning about some of the prefix and the suffixes that is used before units, and eventually at the end we'll do some of the interconversion of units in today's session. Okay, so let us begin with what is SI unit. As the name implies, SI means that is System International D Units, which is a French equivalent of which is a French word, System International D Units. In English it is called as International System of Units. Okay, these are the unitary systems which is used worldwide. Okay, so means पूरे world में हम SI system ही use करते हैं because which is most recognizable. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अर्लियर वी यूज टू मेक यूज ऑफ MKS सिस्टम. ठीक है, तो MKS सिस्टम में हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज एडअप कर दिए हैं. ठीक है, एंड देन उसको एक सिस्टम दे दिया नाम विच इज कॉल्ड एज SI सिस्टम और SI यूनिटरी सिस्टम. Okay, it is introduced in 1960 by General Conference of Weight and Measurement. ठीक है, and it is also called as modified MKS, which is also called as metric system. ठीक है, क्योंकि modified, why it is called modified, because हमने इसमें MKS system में तो mass, length and second होता था. इसमें हमने बहुत सारे और fundamental quantities add up किए हैं, like temperature, electric current and numerous other physical quantities, which we'll be learning one by one. ठीक है, ओके, सो एंड 2 supplementary units और भी हैं इसमें एडेड. ठीक है, विच विल बी लर्निंग वन बाय वन. ठीक है, सो द SI सिस्टम इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड. ठीक है, विच इज हैज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, and most of the country make use of SI system, means all the physical quantities measured in, and it is given in only SI system or SI unitary system. Okay, so it comprises of 7 fundamental units. For 7 fundamental quantities are like mass, length, time. These are the 3 quantities which are already there in MKS system. Already we have discussed about these things. Okay, so length was measured in meter, so which is the SI unit of length, which is meter, and the SI unit of mass is kilogram, which is kg, and SI unit of time is second. Okay, so these are the things which I have already discussed in the previous classes also. Okay, there are new terms that you need to learn, like temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. These are the quantities, these are the other fundamental quantities, and they are also called fundamental quantities because they are independent. They are also independent, means they are not dependent on derived quantity. Other quantities पे dependent ये नहीं है, so we cannot classify them into derived units. Okay, so let us discuss it one by one. Okay, so let us discuss first what is temperature. ठीक है, temperature within the body can be classified as a degree of hotness और coldness within the body. मान लो किसी भी particular body पे कितना hot है कितना cold है, वो हम किस में measure करेंगे, temperature में measure करेंगे. And the temperature is the SI unit of temperature is Kelvin, whose symbol is denoted by capital K. Okay, so we cannot measure, we can also measure the temperature in degree centigrade. We can also measure the temperature in degree Fahrenheit, but these are the other units that we can use it to classify temperature or in order to measure temperature. But majorly SI unit is Kelvin, and you should also know the relationship between degree as well as Kelvin. Like 0 degrees it is equivalent to 273.15 Kelvin, and 100 degree centigrade is equivalent to 373 Kelvin, 373.15 Kelvin, as you can see. So temperature SI unit is Kelvin. Okay, and 0 degree is your freezing point of water, and 100 degrees is your boiling point of water. So these are the things that you should remember while learning about the aspect of temperature. Okay, so now let us discuss about what is electric current. The electric current's SI unit is ampere. It is given by the symbol A. Okay, so capital A, it is given by the symbol capital A. So what is electric current? Electric current, suppose I have taken a cylindrical copper wire
and whose length is L, and continuously I am attaching a battery through it. Okay, so the current will flow from the battery from its higher potential towards lower potential. So what is current? So and current is developed within this conductor. So what is current? Current is nothing but charge flown within the wire through a given cross sectional area per unit time. So and charge is measured in coulomb and time is measured in second. So it is a ratio of charge flown per unit time. So that means कि अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बात करूं, ठीक है, एक इसको काट दो इस वायर को, ठीक है, और इसके क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज पास होगा, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकंड में, दैट इज एम्पियर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, and its unit is ampere. So 1 ampere means if 1 coulomb of charge flown within the wire in 1 second, so such a current is called as 1 ampere current. So the wire में current होगा 1 ampere का जब इस wire में, ठीक है, 1 coulomb charge पास होता है 1 सेकेंड में, ठीक है. So we'll also learn about the electric current in the further जो भी हम chapters आगे हम पढ़ेंगे, like electric currents वाला chapter पढ़ेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. Okay, so now let us discuss about what is luminous intensity. Luminous intensity का मतलब होता है कि एक particular area पे, ठीक है, कितने number of क्या कहते हैं, कितने number of light rays are passing per unit second. तो means number of that is how we can define luminous intensity of a body. ठीक है, तो that means कि एक particular area पे कितने number of rays पास होंगी, that is called luminous intensity, and obviously it is measured in candela, and whose SI unit is candela. Okay, what is amount of substance? Amount of substance is measured in mole. Okay, 1 mole of any substance, it is equivalent to 6.023 into 10 to the power 20, 6.022 into 10 to the power 23 number of that molecules, and which is also called Avogadro's number. उसी को हम Avogadro number भी कहते हैं, ठीक है. So एक मोल का मतलब कि 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules होंगे एक मोल के अंदर, ठीक है. So, and these are the things which you will be learning in your chemistry chapters. Okay, now let us discuss about what is supplementary quantities. In generally, supplementary quantities are of two type, plane angle as well as solid angle. ये plane angle हम वैसे भी पढ़ते आ चुके हैं, like एक normal angle, ठीक है, लाइक डिग्री में आप जैसे मेजर करते हो 10 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री, ठीक है, ये आप 90 डिग्री कह सकते हैं कि इसमें 90 द एंगल ऑफ द प्लेन, दिस प्लेन एंगल इज 90 डिग्री. तो जनरली हम डिग्री में मेजर करते हैं प्लेन एंगल्स, ठीक है, बट उसका एसआई यूनिट है रेडियन. सो द रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, नॉट डिग्री. So and it can be also measured in degree also. तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? So pi radian it is equivalent to 180 degree और pi by 2 radian is equivalent to 90 degree. Like here it is 90 degree, ठीक है. So इसी को कहेंगे 90 degree it is equivalent to pi by 2 radian. Pi is 22 by 7, ठीक है. So 22 by 7 divided by 2. The value that you will get is that is equivalent to 90 degree. So 90 degree it is equivalent to pi by 2 radian के बराबर होता है और pi radian it is equivalent to 180 डिग्री के बराबर होता है. So SI unit of plane angle is radian, ठीक है. So likewise आप ऐसे ही कर सकते हैं, this is 180 डिग्री, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री है तो pi radian कहेंगे इसको हम. ये कितना एंगल है? pi radian, ठीक है. ये कितना एंगल है? pi by 2 radian, ठीक है. लाइकवाइज आप बहुत सारे एंगल्स निकालते चले जाएंगे. ये कितना एंगल होगा? ये वाला, दिस इज 270, ठीक है, विच इज थ्राइस ऑफ 90 डिग्री. सो 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 रेडियंस. सो 3 पाई बाय 2 रेडियन इट इज योर 270 डिग्री, ठीक है. सो लाइकवाइज एंड 360 डिग्री इज योर 2 पाई रेडियन, ठीक है. लाइकवाइज ऐसे ही करते रहेंगे. व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल दैट मीन्स कि एक मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ. दिस इज नॉट प्लेन, प्लेन में नहीं कर सकते हो आप. सॉलिड एंगल वुड बी लाइक दिस. अगर आप ऐसे ले लेते हो कोन, ठीक है, टेकिंग योर पूरा स्फेयर लिया आपने, ठीक है, स्फेयर में से इतना पोर्शन हटा दिया. सो दिस इज योर सॉलिड एंगल विच इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन, ठीक है. तो यही आपका सॉलिड एंगल है, स्टेरेडियन. ये पूरा जितना एंगल है दैट दिस इज योर स्टेरेडियन एंगल. ओके, ये सॉलिड एंगल आपका प्लेन में नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेन में नहीं है, एक स्पेस में है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉलिड. तो एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन. ओके, now let us discuss about prefix and
which are used before units, like prefixes like डेकामीटर, सेंटीमीटर, which like nanosecond, millisecond, जो हम यूज करेंगे यूनिट से पहले की. सो लाइक बिगर यूनिट्स अगर हम मेजर करते हैं, लाइक प्रीफिक्सेस विच आर यूज्ड फॉर बिगर मेजरमेंट, प्रीफिक्सेस जो हम बिगर मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, लाइक डेकामीटर, लाइक हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें हम जो अगर हम बड़े बड़े हम मेजरमेंट करेंगे, मीन्स ज़्यादा बड़ा लेंथ मेजर करेंगे या ज़्यादा बड़ा टाइम मेजर करेंगे, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे हम प्रीफिक्सेस, लाइक and we'll be learning about these things by one. Okay, so let us discuss about prefixes which are used in bigger units, like deca, which is given by the symbol KDA, and it is equivalent to 10 raised to power 1. अगर मैं कहूँ 1 डेकामीटर, तो इसका मतलब डेका का मतलब 10 raised to power 1, that is 10, so 10 मीटर के बराबर होगा. अगर मैं कहूँ हेक्टोमीटर, हेक्टो का मतलब 10 raised to power 2 मीटर, तो दैट मीन्स 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर. अगर मैं कहूँ किलोमीटर, सो किलोमीटर इज 10 raised to power 3, तो मैं कहूँगा 10 raised to power 3 मीटर. 1 किलोमीटर इट इज इक्वल टू 10 raised to power 3 मीटर. ओके, लाइकवाइज मेगा इज 10 raised to power 6 मीटर. ठीक है, जरूरी नहीं हम इसमें मीटर में भी कर सकते, यू कैन ऑल्सो मेजर सच थिंग्स इन मास ऑल्सो, लाइक किलोग्राम. ठीक है, सो किलोग्राम, 1 kilogram it is equivalent to how many grams? 1000 gram, that means 10 raised to power 3 gram. Okay, so likewise we can make use in within the different unitary systems. Okay, so likewise gigameter can also be expressed as 10 raised to power 9 meter, tera 10 raised to power 12, peta 10 raised to power 15, exa 10 raised to power 18. Okay, so zeta 10 raised to power 21, otta y 10 raised to power 24, and these are the symbol which are used to represent it. Okay, so in generally you should learn about till exa, because most of the time you will be having in equations or in the formulas, you can make use of these, because these are the terms which may be used in your formulas में भी आपको ये सारी terms given होंगे, so उसमें आपको easily solve करने में आसानी होगी. ओके, सो आपको ये जो बिगर यूनिट्स है सब याद रखने हैं टिल एक्सा तक याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. इवन फॉर हायर क्लासेस के लिए भी आप एक्सा तक याद रखें तो दैट वुड बी गुड फॉर यू. Okay, so now let us discuss about some prefixes which are used for smaller measurements. Like जो छोटी छोटी चीज़ें मेजर करेंगे हम, लाइक डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में मेजर करेंगे, जो छोटी छोटी मेजरमेंट्स मेजर करते हैं हम, दीज आर द यूनिटरी सिस्टम और द प्रीफिक्सेस दैट विल बी यूजिंग बिफोर यूनिट्स. लाइक डेसीमीटर, अगर मैं बोलूँ डेसीमीटर, लाइक डी, स्मॉल डी इंटू एम, सो डेसीमीटर का मतलब, डेसी का मतलब 10 to power -1, तो 10 to power -1 मीटर. 10 to power -1 मीटर मीन्स 10 to power -1 कितने के बराबर होता है? 0.1 मीटर. ठीक है, सो लाइक सेंटी मीन्स सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर मीन्स सी इंटू स्मॉल एम, स्मॉल सी इंटू स्मॉल एम, इट इज सेंटीमीटर. सो इट इज इक्वल टू 10 to power -2 मीटर के बराबर होगा ये. ठीक है, सो लाइकवाइज आपको ये सारे इंटर कन्वर्जन्स पता होना चाहिए. सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to power -2 मीटर के बराबर होगा. ठीक है, और इसका उल्टा रिवर्स भी पता होना चाहिए. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to power -2 मीटर, तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 1 मीटर 10 to power 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा. तो इस टाइप के इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए. लाइक मिली, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर, इट इज इक्वल टू 10 to power -3 मीटर. मैं जब बोलूं मिली तो स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम, इट इज इक्वल टू 10 to power -3 एम, क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10 to power -3, तो हम कहेंगे 10 to power -3 मीटर के बराबर. तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to power -3 मीटर. सो इसका रिवर्स हो गया, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? 1 मीटर 10 to power 3 मीटर के बराबर होगा. ओके, सो लाइकवाइज आप ऐसे ही कर सकते हैं. माइक्रो इज म्यू साइन से डिनोट करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ ग्रीक सिंबल म्यू मीटर, मीन्स माइक्रोमीटर 10 to power -6 मीटर. नैनोमीटर, नैनो सेकेंड्स भी कह सकते हैं आप, माइक्रो सेकेंड्स भी कह सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मेजर सच थिंग्स इन सेकेंड्स. ओके, पिको सेकेंड्स, पिकोमीटर. ठीक है, पिको इज 10 to power -12, फेमटो 10 to power -15,
एटो 10⁻18 एंड लाइकवाइज ये आप ज़्यादातर यहाँ तक याद रखें, एटो तक याद रखें, एटो तक भी नहीं, फेम्टो तक भी याद रखेंगे, दैट वुड बी गुड फॉर यू। फेम्टो इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मी, फर्मी भी कहते हैं इसको, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मी। 1 फर्मी इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻15 मीटर। फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 10⁻15 मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मी, एक फर्मी भी कहते हैं इसको। ओके, यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, बीच में एक और टर्म आ सकता है 10⁻10, तो उसको हम कहेंगे 1 एंगस्ट्रॉम, वो हम आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, वो चीज़ भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये सारे आपको टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है। बिगर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स दे विल बी कमिंग इन योर न्यूमेरिकल्स, सो वी हैव टू इंटर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर लोगे, लाइक जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो सकता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो सकता है, ठीक है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना हो सकता है, एंड इंटर कन्वर्जन यू नीड टू नो, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल फर्स्ट। नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे हम थोड़े से प्रॉब्लम कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखो, एज यू कैन सी इन दिस PDF, you have to convert 0.1 millimeter to first kilometer, then what is its value in micrometer and what is its value in centimeter, ठीक है। इसके डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हम पहला पार्ट देखते हैं। आपको 0.1 मिलीमीटर दे रखा है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। ओके, एज यू कैन सी 0.1 मिलीमीटर, 0.1 का मतलब 1.10, ठीक है। मिली मीन्स 10⁻³ जैसे कि हम पहले पढ़े थे हम, ठीक है। मिली का मतलब 10⁻³ तो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, मिली इज 10⁻³ के बराबर है, और मीटर है तो मीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इट मस्ट बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना होता है, 10⁻⁻1 ही होता है, ये 10⁻1 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, 10⁻⁴ मीटर। सो 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर। तो पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करो, इसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो, मीटर में लेके आओ, ठीक है। आप देख लो, आप इसको मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ना हो किलोमीटर में करना है, ठीक है। हमें पता है मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ऐसे बिगर यूनिट्स में हमने पढ़ा था, देखो, किलो इज इक्वल टू 10⁻³, ठीक है, किलो इज इक्वल टू 10⁻³ यहाँ पे देखो किलो। तो ऐसे ही आप करो, किलो 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर, तो 1 मीटर कितने के बराबर होगा, 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, ऑलरेडी 0.1 मिलीमीटर 10⁻³ 4 मीटर के बराबर है, तो मीटर, 1 मीटर की वैल्यू कितने की किलोमीटर के बराबर होती है, 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ कितना होता है, 10⁻⁷ किलोमीटर, ठीक है। सो नाउ वी हैव इजीली कन्वर्टेड 0.1 मिलीमीटर इंटू 10⁻⁻ इंटू किलोमीटर। इसकी किलोमीटर में वैल्यू होगी 10⁻⁷, ठीक है। सो अब लास्ट वाला डिस्कशन कर लेते हैं हम, 0.1 मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स, एक सिस्टम को डिफरेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो लेट अस डिस्कस द थर्ड सोल्यूशन। यू हैव टू कन्वर्ट 0.1 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। देखो, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है भाई, 10⁻² मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ओके, तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1 मीटर उल्टा ही कर देना है, माइनस का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होगा, दैट मीन्स कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके, नाउ क्योंकि हम यूनिट्स आपको पता होना चाहिए किस में किस कन्वर्जन करना है, ठीक है। 0.1 अगेन 10⁻⁴ मीटर के बराबर होता है। सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो उसकी वैल्यू, अब जिसमें आप कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यूज का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। हमें पता है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ 1 मीटर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर। तो ये लिया 10⁻⁴ इंटू 10⁻² कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर।